In this video, we are going to talk about the contraindications for dental extractions. Now, the contraindications can usually be classified due to systemic or local reasons, which are further divided into relative and absolute contraindications. First is relative contraindication. Relative contraindications suggest that the systemic or the local condition of the patient, it needs to be modified or improved by proper medication and following certain treatment protocol that is suggested by the physician, so that the uneventful extraction procedure with proper healing is achieved. मतलब क्या है कि पेशेंट की सिस्टमिक या लोकल कंडीशंस को मॉडिफाई या इम्प्रूव किया जाना चाहिए बाय मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सजेस्टेड बाय फिजिशियन, ताकि एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर के बाद प्रॉपर हीलिंग अचीव की जा सके. उसे कहते हैं हम रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन. नाउ नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस. Absolute contraindications are those contraindications which, if ignored, then a simple extraction may turn into fatal or life-threatening event for the patient. ऐसी contraindication जिसे अगर हम ignore कर दें तो वो patient के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है. Okay, so proper history, both medical and dental history prior to extraction, is to be taken to avoid unforeseen complications. Now we are going to talk about the relative systemic contraindications. First of which is the disorders which are associated with the cardiovascular system, or the patient is cardiac patient. Now, in simple terms, the cardiovascular system can be understood as a network of organs and vessels, which is including heart and blood vessels. काम क्या है इसका? It circulates blood and oxygen throughout the body. Now, blood is responsible for delivering nutrients and oxygen to the body tissues and also for removing the waste products from the body tissues. तो कुछ diseases हैं जो इस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं. अब इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारे पास रूमेटिक हार्ट डिजीज़. देखो, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ 3 वर्ड्स को मिला के बना गया है. सबसे पहला है रूमेटिक. रूमेटिक का मतलब होता है पर्टेनिंग टू और कॉज बाय रूमेटिज्म. ये एक कंडीशन होती है जिसमें कि इन्फ्लामेशन और पेन हो जाती है जॉइंट्स, मसल और फाइबर टिश्यू के अंदर. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हार्ट. हार्ट ऑर्गन हम सब जानते हैं बॉडी का, जो कि ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम. और डिजीज़ एक डिसऑर्डर होता है फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर. क्लियर? तो सिंपल टर्म्स में हम रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को क्या कह सकते हैं? दैट इट इज़ अ कंडीशन दैट डेवलप्स आफ्टर अ पर्सन हैज़ रूमेटिक फीवर, जिसमें कि हार्ट के वेल्व्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं. नाउ द डैमेज टू द हार्ट वेल्व्स कैन लीड टू प्रॉब्लम्स विद इन द हार्ट, पोटेंशियली कॉजिंग सिम्टम्स जैसे कि चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग एक्सेट्रा. नाउ डेंटल एक्सट्रैक्शन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट्स विद रूमेटिक हार्ट डिजीज़ primarily due to the increased risk of infective endocarditis, because the procedure of dental extraction may lead to introduction of bacteria into the bloodstream, which can travel from the blood and reach the heart valves, further leading to potentially life-threatening complications of the patient. So, to prevent the risk of infective endocarditis, alternate dental management strategies such as antibiotic prophylaxis and careful dental treatment planning is needed to be done before dental extraction. Next is coronary heart disease, which includes 3 words. First is coronary, which means pertaining to or involving the heart arteries. Next is heart. Heart is the organ that pumps the blood. Disease is a disorder of function and structure. So coronary heart disease क्या बना? Coronary heart disease is a condition where blood vessels that supply the heart with blood, oxygen and nutrients, they become narrowed or blocked. It will lead to ischemia in the heart musculature, finally leading to problems such as heart attack, chest pain and heart failure in these patients. Coronary heart disease के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? या तो पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा है, या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब ज़्यादा वर्कआउट नहीं है उसकी लाइफ में. अब डेंटल एक्सट्रैक्शन क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन पेशेंट्स में? क्योंकि स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है वो बीपी को बढ़ाने का काम करते हैं और पेशेंट का हार्ट पहले से कॉम्प्रोमाइज़ है. ऑल्सो जो लोकल एनेस्थेटिक और मेडिकेशंस होती हैं वो कार्डियोवैस्कुलर मेडिकेशंस के साथ पोटेंशियली इंटरैक्ट कर सकती हैं. इसीलिए डेंटल एक्सट्रैक्शन से पहले जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनकी मेडिकेशंस कार्डियक फिजिशियन के ओपिनियन के साथ चेंज या फिर ऑल्टर करके हम डेंटल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस. अनस्टेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि फिक्स नहीं है या फिर जो चीज़ कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है. एंजाइना जो होती है वो एक कंडीशन है दैट इज मार्क्ड बाय सीवियर पेन इन द चेस्ट. ऐसी पेन जो कि चेस्ट के एरियाज में हो रही है, जो कि ऑफन स्प्रेड करती है शोल्डर्स में, आर्म्स में, नेक में, इसे हम एंजाइना कहते हैं. एंजाइना का कॉज क्या होता है? इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो सकती है
या फिर इस्चीमिया हो सकता है। पेक्टोरिस जो वर्ड है इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू चेस्ट। तो अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस क्या बना? इट इज़ अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन और चेस्ट डिस्कम्फर्ट that occurs when heart musculature does not receive enough blood flow. It can happen with minimum rest or minimum physical exertion. यानी कि बंदा कुछ भी काम नहीं कर रहा फिर भी पेन अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस के केसेस में हो सकती है। नाउ डेंटल एक्सट्रैक्शन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट्स विद अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल रिस्क होता है। जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और पेन डेंटल एक्सट्रैक्शन के साथ एसोसिएटेड होती है वो पोटेंशियली क्या करती है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है। अब हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर के इंक्रीज की वजह से ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हार्ट जो है उसमें कॉम्प्लिकेशंस ट्रिगर होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। इसीलिए अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस के केसेस में डेंटल एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में। देखो, मायोकार्डियल का मतलब है रिलेटिंग टू हार्ट मस्कुलेचर और इन्फार्क्शन का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ ब्लड सप्लाई टू अ ऑर्गन और अ रीजन ऑफ टिश्यूज, जिसकी वजह से फाइनली डेथ ऑफ द लोकल टिश्यू अकर कर सकती है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो वर्ड है उसका मतलब क्या बना कि ब्लड फ्लो हार्ट के मस्कुलेचर को ब्लॉक हो जा रही है, डिक्रीज कर जा रही है, जिसकी वजह से इस्चीमिया हो जा रहा है, फाइनली डैमेज हो जा रहा है हार्ट के मस्कुलेचर को। इससे भी सेम सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेटिंग। इसमें इमीडिएट मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट को, नहीं तो उसकी लाइफ एंड हो सकती है, क्योंकि हार्ट का जो मस्कुलेचर है वो पोटेंशियली वल्नरेबल हो जाता है वहाँ पे, और एडिशनल स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है एक्सट्रैक्शन के दौरान एक और हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकती है। इसीलिए इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन इन डेंटल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स। अगली बात आती है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के बारे में। ये भी 3 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला वर्ड है कंजेस्टिव। कंजेस्टिव का मतलब होता है कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जा रही है किसी भी चीज़ की या फ्लूइड की, उसे बोलते हैं हम कंजेशन। कार्डियक मतलब है हार्ट और फेलियर का मतलब है अपना काम कर नहीं पाना। ठीक है, तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर इज अ कंडीशन in which the heart is unable to pump the blood so as to meet the requirements of the body, जिसकी वजह से there is a fluid buildup in the body causing the symptoms such as shortness of breath, fatigue, swelling in the legs and ankles. तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में डेंटल एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों होती है? क्योंकि हार्ट के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है फ्लूइड बिल्डअप की वजह से, और स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो डेंटल एक्सट्रैक्शन के साथ एसोसिएटेड होती है वो और ज़्यादा हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देती है और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ कर देती है, जिससे कि हार्ट का ऑलरेडी वीकेंड फंक्शन और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है।